Good evening, hello and welcome to this special broadcast. I'm Anusha Soni. The members of the Jain community have been staging protests in across 5 states of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra and Delhi. And the protests are ongoing for the last 2 weeks. The agitation pertains to 2 crucial religious sites for the Jain community, one in Gujarat and the other in Jharkhand. The Samet Shikhar on the Parshvanath Hills in Jharkhand is considered to be one of the holiest shrines for the Jain community, where 20 of the 24 Jain Tirthankars have attained salvation. Lakhs of devotees go there each year. The proposal and the eventual notification to turn this religious pilgrimage site as a spot for eco-tourism has irked the community. In Gujarat, there are instances of vandalism at the Shatyunjay Hills that houses over 900 Jain temples, and that has infuriated the community members. The community demands that the Jharkhand government should withdraw the notification and the Gujarat government take proper action. The community members also want an investigation into the instances of land grabbing and illegal mining happening in the area, especially in Gujarat. Now, amid all these protests, there are crucial questions that have emerged of balancing the sensitive religious concerns, conflicting concerns, if you talk about the tourism in a particular area. While promotion of economic activity and tourism is very important, the religious sentiments of a particular community, the Jain community, are also very important and to be taken into consideration. They are worried that rampant commercialization will dilute their religious places of worship. Can the state government along with the union government strike an intricate balance? In the next 30 minutes, you would hear from the community members and the ruling party of Jharkhand about the way forward. All angles covered on Biggest Exclusive tonight. अच्छे भावों का अच्छा फल होगा। निश्चित रूप से समेत शिखर का जो आंदोलन चल रहा है वो सफल होगा। हमारा समेत शिखर जी पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। हम सरकार से चाहते हैं कि वही हमारा तीर्थ क्षेत्र रहे, बना रहे। Well, 2 states where there is entire conflict which is emerging, one community which is up in arms. What exactly are the key issues? Let's break it down. Jharkhand and Gujarat, the 2 states, the 2 religious pilgrimage sites which are in focus right now. Now, when it comes to Jharkhand, religious tourism at the Samet Shikharji at the hilltop is one of the crucial concerns. They are saying if you open hotels in this area, there would be, a lot of tenets of Jain faith are about abstaining from certain drinking and eating habits. So those kind of things are going to be diluted. That's the fear of the community. You cannot build hotels or rampant commercialization at a Jain religious pilgrimage site. When it comes to Gujarat, there are fears around illegal mining on the Shatyunjay Hills. This houses more than 900 temples and it's a very, very sacred site. In Gujarat, the hand carts, shops, Poonch dens, all of these are present. In fact, there is an idol of one of the deity there whose feet were vandalized. And the community says that the CCTV cameras should be put and more vigilance is required in these areas. Let's come to Jharkhand once again. The Parshvanath Hills to be developed into a tourist spot. As I said earlier, when you talk about tourism, there are hotels that will come up, there are eateries that will come up. A certain degree of commercialization is inevitable. The community says we want to protect this site against any kind of commercialization which is to follow. Now, the hill has been declared as an eco-sensitive zone. This has been done by the state government and by the union government. Now, as I said, the vandalism at the Adinath Dada's Pagla or the feet of the Lord is one of the things that has been cited, and it has been said that there is some kind of conspiracy that needs to be probed into.
The Shrityunjay Hill, as I said, is a very religious, heavily revered site in the Jain community, and one of the eco-sensitive spots which the community wants should be preserved. Its intricate nature should be preserved, even in Gujarat as well. Fears of, resorts, bars, they may crop up. There may be rampant commercialization, which may not sit very well with the tenets of the Jain faith. All these concerns have been cited to the state government. Members of the community also say that they're going to write to the union government, to the Prime Minister himself, to ensure that these concerns are taken into account. Now, promoting tourism, economic interest versus the concept of faith. Where do you draw the line? How can the state make that intricate balance between these two very important concerns? I'm going to take that question to our guests who are joining us on the broadcast. Tushar Gupta, who is a senior editor of the Swaraj magazine, is joining us on the broadcast. Akash Jain, who is the committee secretary of the Jain Samaj, is also joining us on the broadcast. Dr. Tanuj Khatri, who is the spokesperson of JMM, is also joining us on the show. I want to begin with you, Dr. Tanuj Khatri. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, झारखंड सरकार से जैन समुदाय ने कुछ रिक्वेस्ट की, उन्होंने गवर्नर को भी लिखा है. उनका कहना है कि झारखंड सरकार का ये जो पूरा निर्णय है ये उनके धर्म के विरुद्ध है और वो चाहते हैं कि इसको एड्रेस किया जाए. How will the concerns of the Jain community be addressed by the Jharkhand government? देखिए, पिछले दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा था झारखंड के अंदर में, और जैन समाज के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से उन्होंने मुलाकात की और अपनी जो संवेदना थी उस ऐतिहासिक स्थल को लेकर के जी, और जो पीड़ा थी उसको बताने का काम किया. और आपके चैनल के माध्यम से मैं संभवतः आज राष्ट्रीय पटल पर जो बात अभी बताने जा रहा हूं वो सभी के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है. वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 फरवरी 2019 को झारखंड की भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब उन्होंने एक अध्यादेश लाया और झारखंड का जो गजट उन्होंने प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने पारसनाथ को टूरिस्ट प्लेस घोषित किया. मैं ये गजट की कॉपी भी आपके को उपलब्ध करवा सकता हूं और मैं अपने सामने दिखा भी रहा हूं. ये 22 फरवरी 2019 का है. और उसके बाद एक और जो गजट है, जो गजट ऑफ इंडिया है, जो भारत का जो गजट कहा जाता है, उसमें 2 अगस्त 2019 को, क्योंकि जब झारखंड सरकार ने सिफारिश की थी, जो गजट बनाया था कि इसको पारसनाथ को पर्यटक स्थल बनाया जाए, उसको भारत सरकार ने लागू करने का काम किया गजट बना करके जी. ये दोनों बातों को कोई बता नहीं रहा है, कोई समझा नहीं रहा है. मैं तनु जी एक मिनट. पहली बात तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि इसमें केंद्र सरकार का कोई भी रोल नहीं है. अगर एक इको टूरिज्म स्पॉट डिक्लेयर होता है तो उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भूमिका होती है. यहां पर हम फैक्ट्स को वैसे ही रख रहे हैं जैसे कि वो है. हमने बीजेपी से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो आए और इस डिबेट का हिस्सा बने, मगर उनका पूरा तरीका अलग है इस पूरे मैटर को देखने का. आप राज्य सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एजिटेशन हो रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, गवर्नर को भी एक ज्ञापन दिया गया है. कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी इसमें एक भूमिका है और आप अपनी तरफ से एक स्टैंड ले सकते हैं. अगर कम्युनिटी के लीडर्स ने आपको आके, आपकी सरकार को आके अप्रोच किया है, आपकी सरकार क्या करेगी, आप इसके बारे में हमें बताइए. बिल्कुल, नहीं, ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें बताना इसलिए जरूरी था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ होते तो मैं इसको और फोर्सफुली बोलता. क्योंकि आपने बताया कि वो यहाँ नहीं है तो मैं इस पर अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैंने देश के आपके माध्यम से जैन समुदाय को और देश की जनता को ये बताने का काम किया. अब सवाल जो आपका सीधा सवाल है कि हमारी सरकार क्या करेगी. हमारी सरकार ने अभी तक इसमें कोई एक्शन नहीं लिया है. इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको पर्यटन स्थल बना दिया. हम सभी की संवेदनाओं का ख्याल रखेंगे, सभी की भावनाओं का ख्याल रखेंगे, और यही बातें माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने भी कही है. कल भी आपके प्रेस के लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे और जो जिसका सम्मान है वो बरकरार रहेगा. मैं सागर के पास जाना चाहूंगी. आई वांट टू कट अक्रॉस टू Sagar Jain, who is the president of the Darshit Union from Shivpuri. He is also joining us on the broadcast. Sagar, I'd like to know from you.
आप आर यू सेटिस्फाइड? आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं जो झारखंड सरकार की तरफ से आश्वासन आ रहे हैं या जो बाकी नेता भी कह रहे हैं? सबका बार बार ये कहना है कि आपकी कंसर्न्स को हम सुन रहे हैं, हम उसके ऊपर जल्द ही कोई निर्णय लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जैन कम्युनिटी जैसे प्रोटेस्ट में देखा जा रहा है, आप इन आश्वासनों से तृप्त नहीं हैं, आपको एक्शन चाहिए सरकार की तरफ से। जय जिनेंद्र सभी को। दरअसल बात यह है कि जैन समुदाय का सबसे दिल अगर जैन समुदाय का कहा जाए तो वो है सम्मेद शिखर। और अब बात आ चुकी है सम्मेद शिखर के ऊपर। तो क्या है, बात करने के लिए तो हम चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बॉल की तरह एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं। कभी तुम पकड़ लो, कभी हम पकड़ लें। लेकिन इन पेपरों में कोई भी लिखने को तैयार नहीं है कि नहीं, ये जैन तीर्थ है, ये टूरिज्म तीर्थ नहीं है। आप उसे हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि हमारा तीर्थ जो है उसे सिर्फ और सिर्फ आप एक तीर्थ के नाम पे अगर रखें, उसे ना कि एक टूरिस्ट जगह बना दिया जाए। क्यों बना दिया जाए? इतनी जगह है भाई, क्या है अगर उसको टूरिज्म स्पॉट बनाया जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो सही या गलत है, लेकिन मैं आपसे सवाल जानना चाहती हूँ ताकि दर्शक भी समझ सके। जैन समुदाय का क्या डर है? अगर इसको टूरिज्म स्पॉट बना दिया जाएगा तो उसमें क्या गलत होगा? टूरिज्म अगर इसे बना दिया जाएगा तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जैन समुदाय जो है वो भगवान महावीर के दिखाए जो रास्ता है अहिंसा का, उस पे चलता है। हमारे यहाँ रात में भोजन भी नहीं करते हैं। और आप अगर टूरिज्म वहां पर आ जाएगा तो मांस, मदरा, मछली पालन, ना जाने कितने अलग अलग तरीके की वहां पे चीजें आ जाएंगी। क्योंकि टूरिस्ट है वहां पे, टूरिज्म में सब कुछ अलाउ हो जाता है, क्योंकि टूरिस्ट चाहते हैं, हर तरीके के टूरिस्ट चाहते हैं। तो अगर मैं जाता हूँ मक्का मदीना, तो मैं मक्का मदीना अपने श्रद्धा से जाता हूँ। मैं अगर जाता हूँ अयोध्या तो श्रद्धा के लिए जाता हूँ। लेकिन अगर जब नाम आ जाएगा टूरिज्म का, तो मेरी वो श्रद्धा कहीं ना कहीं खत्म होती जाएगी। और ये कहीं ना कहीं उस धर्म के लिए खतरा है, क्योंकि आस्था जहां खत्म हो जाती है। एक बात और बताइए सागर, इस पूरे निर्णय को लेने से पहले, 2019 से ये मसला चल रहा है, इस पूरे निर्णय को लेने से पहले क्या केंद्र या राज्य सरकार ने, बीजेपी या जेएमएम ने कम्युनिटी के लीडर्स से किसी भी तरीके की बातचीत या वार्तालाप किया था? आपसे किसी तरीके का कंसल्टेशन किया गया था? दरअसल क्या था कि 2019 में जब इन्होंने गैजेट को लॉन्च भी कर दिया था, 2 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार के मंत्रालय ने गैजेट नोटिफाई किया था कि क्या गैजेट हो सकता है। अब इनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि 2 बहुत लीडिंग जो न्यूज़पेपर होते हैं वहां पर आपको उस गैजेट को पब्लिश करना था। और जो वहां राज्य का जो एक न्यूज़पेपर होता है, वहां पर आपको ऐसे गैजेट को पब्लिश डालना था। लेकिन आपने क्या किया कि आपने 16 ऐसे लोग जो ना तो जैन थे और जो पत्थर के व्यापारी थे, उनकी बातों को मानकर आपने 5 अगस्त 2019 को इस गैजेट को लॉन्च कर दिया। जैन समाज को पता भी नहीं था कि इस तरीके का कुछ हमारे सम्मेद शिखर के साथ हो चुका है। मैं आपकी बात समझती हूँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, एंड आई विल टेक दैट पॉइंट टू जेएमएम एज वेल. तुषार Gupta is also with us on the broadcast, but before I go to Tushar, Basant Mittal, who is the president of the Marwadi community, is also joining us on the broadcast. बसंत जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या भय है जैन समाज में? क्या वजह है कि 5 राज्यों में प्रोटेस्ट हो रही है? एक संत भी थे जैन समाज के जिन्होंने समाधि ले ली है। कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि साइलेंट प्रोटेस्ट चल रही है, गवर्नर को ज्ञापन दिया गया है। इस समय क्या क्या डिमांड्स हैं कम्युनिटी की? झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी हमारे पास नेता है और बाकी लोग भी इस पूरी डिबेट को सुन रहे हैं, आपका पक्ष? नहीं, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि ये धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ संकल्प है, और आज का या आजादी के पूर्व या आजादी के बाद का नहीं, ये अनादिकाल का। ये झारखंड में समद शिखर जी, ये अनादिकाल से, और 24वें वीर तीर्थंकर जैन मुनि यहाँ पर ब्रह्मलीन हुए, उन्होंने मोक्ष पाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और लोग कहते हैं कि भगवान महावीर भी के चरण वहां पड़े, ये अपने आप में बहुत आस्था का विषय है। और मैं तो झारखंड में ही हूँ, मेरा सौभाग्य है, और पूरे विश्व से लोग गिरिडीह जिला स्थित मधुबन समद शिखर जी में आते हैं और सेवा करते हैं। सेवा भाव से उनकी जो आस्था है वो देखते ही बनती है
कि लगता है जैसे लोग मैंने अभी भी मैं 3 दिन वहां था, तो जैसे स्वर्ग का सा आनंद उन लोग महसूस करते हैं। हम लोग भी तीर्थों में जाते हैं पूरे देश में, लेकिन जैन समाज के जितने भी अनुयायी हैं, अपने भाई हैं, पूरे परिवार के साथ वहां आकर जो आनंद का अनुभव करते हैं, जो खुशी का अनुभव करते हैं, जो पर्वत पर जब चढ़ते हैं खाली पैर जी और उतर के आते हैं, थक के चूर होते हैं, फिर भी मन में कितना उत्साह उनको रहता है कि हमने जैसे कोई किला फतह कर लिया। उस प्रकार के उनके मन की इच्छा रहती है कि एक बार तो जीवन में हम लोग जरूर समर्थ शिखर जी का दर्शन करें। और अगर सरकार ने निर्णय लिया है तो हम लोग तो आग्रह किए हैं, और सभी जानते हैं अहिंसा परमो धर्म जैन समाज का मुख्य स्लोगन सरकार भी से है। झारखंड की सरकार से और केंद्र सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? झारखंड की सरकार और केंद्र सरकार से मुख्यतः एक ही मांग है कि इसको तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए, तीर्थ स्थल रहने दिया और जाए। पर्यटन स्थल, तो पर्यटन का नाम आते, टूरिज्म का नाम आते ही यहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं चेंज हो जाएगी, और जो अपना जैन समाज जो शांति प्रिय है और अहिंसा का पुजारी है, सारा समाज, तो कहीं ना कहीं आपके धर्म के जो तो टेनेट्स हैं, जो बेसिक आपके बिलीफ सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचेगी, ये आप कह रहे हैं। आई वांट टू ब्रिंग इन तुषार गुप्ता एज वेल, हु इज द सीनियर एडिटर ऑफ स्वराज मैगजीन, जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। तुषार, यू हर्ड बोथ द साइड्स, आपने दोनों पक्षों को सुना। केंद्र और राज्य सरकार जब भी किसी इस तरीके का नोटिफिकेशन लेकर आते हैं, मत तो यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा मिले, वहां की जो आम जनता है, लोग हैं, उनको व्यवसाय के नए नए साधन मिले। बट somewhere you have to draw a line, because this is a very sacred pilgrimage site for Jains, there for hundreds of years, and holds a very important significance. Absolutely, Anusha, you have to draw a line. Let's break it down one by one. If I compare Shri Samet Shikhar ji to other religions, it's what Golden Temple is for the Sikh community. It is what Vaishno Devi or the Char Dham is for the Hindu community. It is what Makkah, Medina is for the Muslim community. So we are not talking about just any random temple. We are talking about the most sacred site in India for the Jain community. Now there is a great degree of commercialization that grows around Golden Temple or Vaishno Devi, or in Uttarakhand around Haridwar and Rishikesh. Great deal of commercialization. But a line has been drawn to preserve the sanctity of all these religious places. You go to Amritsar, there's a heritage street right outside the Golden Temple. But inside the Golden Temple, the sanctity of the place has been preserved. Irrespective of the history of the last 200 years of the place, the sanctity has been preserved. Same for Vaishno Devi. So many dharamshalas, so many hotels, so many tourism and taxi businesses going on. But the sanctity of the temple has been preserved. So today what the community is asking, to sum up, is saying, we are not closing our doors to the commercialization. We are not saying that there can be no commercialization or development of the area. What we are saying is that the sanctity of the most sacred site needs to be preserved. And I don't think the community is wrong to demand that. Because at the end of the day, if you turn it into a commercial spot, you'll have meat sellers, you'll have liquor sellers, you'll have people selling all kinds of food, dealing in all kinds of trade, and that defeats the sanctity of a Jain temple. Look, Anusha, at the end of the day, Jains are an actual minority in this country. And it's not like they have temples everywhere. They have very few temples across the country, and most of them are very, very old. Today, what we are saying is, let the temple be a religious spot. Let it not be a tourism spot. Let the commercialization go on. But there is another question I have, Anusha. The Union Ministry declared the Pasnath Hills as an eco-sensitive zone. That was the notification they came out with way earlier. Now, I don't understand. If it's an eco-sensitive zone, why would the state government be desperate to encourage tourism in such a spot? Because that would be contrary to what the union government is saying. So at the end of the day, we need to draw a line. Commercialization is not wrong, but let the sanctity of the place be preserved. The sanctity of the place be preserved. That's a very important point that Tushar is talking about. And yes, there are various Hindu pilgrimage sites which have also become centers of religious tourism. I want to go back to Dr. Tanuj Khatri as well, who's with us on the broadcast. Tanuj ji, तुषार जो बोल रहे हैं उसमें मेरिट है कि आप एक जगह की टूरिज्म को या आप लोगों को बढ़ावा दीजिए कि वो वहां पर जाएं, लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल की अपनी एक सैंक्टिटी होती है, अपनी एक गरिमा होती है, और उसको बचा के रखना सरकार का काम होता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। क्योंकि आप राज्य सरकार में हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है।
जो जिसकी आस्था है, जो जिसकी भावना, और आज से नहीं सदियों से अनादिकाल से उसको छेड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया 2019 में। 2019 के अंदर में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में नहीं थी। 2019 में जब ये नोटिफिकेशन जारी किया, और जैसा कि अभी उनके प्रतिनिधि भी बता रहे हैं कि इसको न्यूज़पेपर तक में भी जारी नहीं किया गया। ये बात इनके सामने सागर जी ने जो भी बताने का काम किया। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, लेकिन एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, राज्य सरकार इसका विरोध कर सकती है या नहीं कर सकती है? आप मुझे इतना बताइए। अनुषा जी, आप सुन लीजिए ना। जी बताइए, सुन रही हूँ। सभी सेंसिबल लोग हैं, हम सेंसिबल बात कर रहे हैं कि इसको करने का काम ही बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। दोनों तरफ, केंद्र में भी भाजपा थी, राज्य में भी भाजपा थी, और हम इसका समाधान करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ही इसका समाधान करेगी। आप इसका समाधान करेंगे और आप इस नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? कौन विरोध कर रहा है? नहीं, इस पूरे नोटिफिकेशन का जो भाजपा लाई थी उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार विरोध कर रही है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ही इसका समाधान करेगी। तो चलिए एक और खबर आ रही है। आई रिक्वेस्ट ऑल माय गेस्ट, आप सबसे निवेदन है हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर आ रही है, एंड दिस इज वाया सोर्सेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच हैव नाउ रिवील्ड दैट श्री समर्थ शिखरजी इशू विल बी एड्रेस्ड वेरी सून बाय द गवर्नमेंट। द टॉप level authorities within the union government are looking at this entire issue, a very, very sensitive issue. Our political editor Maria Shakil will tell us more about it. Maria, a resolution very soon? Possible, because remember, the members of the Jain community who have been protesting in several parts of the country, in fact, in a delegation reached Delhi, and they have handed over a letter to President Draupadi Murmu. That happened on Sunday. Right. Thereafter, what we have seen is that there has been requests that have been made to Jharkhand Chief Minister as well to reconsider his issue. Whether Hemant Soren does a rethink, that remains to be seen, but certainly what sources in the government are saying is that because this issue is only escalating, there is going to be a solution soon. What will be a possible solution, that remains to be seen, but again, on one hand, this is a question of pilgrim side, matter of belief and faith. On the other hand, the state government is talking about it from the point of view of development, but it certainly has political overtones to it, Anusha, and that is becoming evident. That's becoming evident, but the union government top sources are indicating that there'll be a solution very, very soon. सागर, आपके पास वापस आऊंगी मैं। केंद्र सरकार में एक हलचल है, एक सोच है कि बहुत जल्द इस पूरे मसले का समाधान निकाला जाए। आप आश्वस्त हैं? आश्वस्त तो ये पूरी जैन समाज जो मेरे को सुन रही है और जिसकी आवाज आप तक पहुंची है, वो किसी हालत में नहीं होगी इस न्यूज को भी सुनकर, क्योंकि ऐसी कई न्यूज़ें आती रहती हैं आजकल। और एक न्यूज बहुत पहले, अभी कुछ दिन पहले भी आई थी, जिसमें हमें आश्वस्त कर दिया गया था कि राज्य सरकार इस पर बात करने वाली है और इस गैजेट को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो फेक निकला। तो हम बातों से काम नहीं चलेगा जब तक हमारे को लिखित नहीं दे दिया जाएगा कि आपका समिट शिखर इस तरीके से रहेगा और हमारा टूरिज्म इस तरीके से रहेगा, तब तक हम किसी तरीके से आश्वस्त नहीं होंगे। क्योंकि समस्या ये है कि राजनेताओं की समाधि दर्शनार्थ के लिए बनाई जाती है और 3 लोक के नाथ परमात्मा के मोक्ष स्थल को आज पर्यटन स्थल बना दिया गया है। तो ये देखने वाली बात है कि जो मंदिर बनाने वाली सरकार है, आज वो उससे हमें अपने धर्म बचाना पड़ रहा है। ये सोचने वाली बात है। और अगर अभी भी अगर सरकार ने हमें लिखित नहीं बताया कि आपका समिट शिखर आपका रहेगा और हमारा टूरिज्म इस तरीके से चलेगा, तो भारत देश में जिस तरीके से अभी विरोध प्रदर्शन जैन समाज कर रही है, वो और उग्र होगा, और आज नहीं तो कल होगा, जब तक हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि बहुत ही संवेदनशील विषय है, और उम्मीद यही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसका जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन निकाले। तुषार, आपके पास वापस आ रही हूँ। आई एम कमिंग बैक टू यू। You see that the community leaders are clearly agitated, and rightly so. You pointed out the religious significance of Sametji Shikhar and how important it is to the Jain community. We are also hearing from the union government that they are thinking about a possible solution. At the union level, this is also a government which has shown extreme sensitivity to various communities and religious belief and respect as well. What kind of solution can really lie in the way? Tushar.
Well, it would be withdrawing the notification, calling the religious spot a tourism spot, converting it to tourism spot. Look, to give you a political perspective, Anusha, there has been great leverage that has been given to the Muslim community during the time of CAA. There has been a great leverage that was given to the Sikh community during the farmers' protest. So why can't the same leverage be extended to the Jain community when their issue is not of economics but of culture? This is something of cultural importance, of historical importance. It doesn't get more important than this. The sects which are more than 2,000 years old, the texts that are more than 2,000 years old, mention this temple. Now, this is the most holiest place for the Jains of India. The least the union government can do is ensure that the place remains a religious place, is not converted into a tourist spot with eateries and kids zone and whatnot cringe fest that goes on in other tourist spots of India. And this should also set a precedent, Anusha. More importantly, this should also set a precedent for the future, that there are lots of cultural spots across the country for all communities, not just Jains, or Hindus even, Muslims even, Sikhs even. Let's not kill their sanctity by converting into some kind of commercial hotspots. I agree economic activity is important. I agree economic for the region is important. But let's not kill the sanctity of all the religious places we have, be it a Jain place, be it a Hindu place, be it a Sikh place, a Christian place, a Buddhist place, any place. Let's ensure the sanctity and let's ensure the commercialization goes around it, not inside. The withdrawal of the notification and nothing less than that. That's what Tushar is suggesting as a solution. That was something Sagar was also talking about. बसंत जी, आपके पास वापस आऊंगी. सागर का कहना है कि जब तक उन्हें लिखित आश्वासन या लिखित रूप में नहीं दिया जाएगा कि इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया जाएगा या कोई सरकारी ऑर्डर नहीं आ जाएगा, तब तक जैन समाज अपनी प्रोटेस्ट वापस नहीं लेगा. एकदम सही बात है. सागर जी के साथ हैं हम लोग, और सागर जी का कथन भी सही है कि कोई बहकावे में, कोई उसमें नहीं आने का है जब तक हम लोग को नोटिफिकेशन और लिखित नहीं मिल जाता है कि समझ शिखर जी और ये पर्वत जो है उसी परिस्थिति में रहेगा. ये समझ शिखर जी जैनियों का सबसे प्रमुख तीर्थस्थल है और वो तीर्थस्थल ही रहेगा. यहाँ कोई टूरिज्म, कोई पर्यटन स्थल, कोई वो कार्य नहीं होगा और हम लोग को फंड की भी आवश्यकता नहीं है. आज मारवाड़ी समाज, जैन समाज इतना सक्षम है कि वहां जाके देखेंगे आप तो मिलियन एंड मिलियन पैसे लगकर वहां धर्मशालाएं बन रही है, मंदिर बन रहे हैं. तो वैसी कोई बात नहीं है. इसलिए हम लोग सक्षम है अपने जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको आप करने के लिए. आप चाहते हैं सिर्फ वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाए. मेरे पास अंतिम 1 मिनट है शो पे. सागर, आपके पास आना चाहूंगी वापस. किसी भी मसले के हल के लिए सरकार से एक वार्तालाप, एक कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी होता है. बहुत अच्छी बात है, कम्युनिटी बाहर आई है, प्रोटेस्ट कर रही है, पीसफुल प्रोटेस्ट रहा है, आपका अधिकार है संविधान के तहत. मगर आप कैसे इंश्योर करेंगे कि कहीं ना कहीं सरकारी महकमे से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बातचीत बनी रहे ताकि कोई सोल्यूशन इसका जल्द से जल्द निकल आए? असल समस्या तो वही आ रही है कि केंद्र सरकार से बातचीत नहीं हो पा रही है. 2-4 हमारे जो सांसद आए, जो दिल्ली में आए थे, तिवारी जी आए, उन्होंने कहा कि 15 दिन दे दीजिए. एक सांसद आते हैं वो बोलते हैं 10 दिन दे दीजिए. एक सांसद आते हैं वो बोलते हैं 5 दिन दे दीजिए. लेकिन ऐसा कैसे चलेगा? आप हमसे बात करिए ना. आप हमसे सिर्फ डेट मांगे जा रहे हैं. आपकी डेट मांगने से हमारा क्या ये जो मसला है ये हल हो जाएगा? या तो आप बात करिए कि हाँ, हमारे समुदाय से 4 लोग आपको चाहिए, बात करिए जी. आप बात तो करिए. ये सरकार बात करने को तैयार नहीं है. प्रॉब्लम तो वो आ रही है. देखिए, उम्मीद हम यही करते हैं. पूरा द इंटायर इंटेंशन ऑफ होल्डिंग दिस डिस्कशन, पूरा मुद्दा यही था कि कहीं ना कहीं आपके समुदाय की जो कंसर्न्स है वो सामने आए और केंद्र और राज्य सरकार ये सारी बातें सुन सके और जल्दी से जल्दी कोई हल निकले इस बात का. 5 राज्यों में प्रोटेस्ट हो रही है. देयर आर अक्रॉस 5 states where these protests are going on, a highly sensitive matter, and this entire site that you're talking about, this site is very, very important for the Jain community. We hope that there is a solution in sight. I thank all my guests for joining us on the broadcast, Tushar Gupta, Basant Mittal, Sagar Jain and Dr. Tanuj Khatri. Hoping that there is a resolution very, very soon. The union government is also looking at this entire issue. With that, it's a wrap from my side. Thank you for watching.